Good morning, student. I am Miss Seema Patel. So today we will continue our topic essential newborn care. Okay. So in the last class we have seen in the immediate basic care, and we have completed maintenance of temperature, establishment of open airway circulation. Okay. In that we have seen establishment of open airway, then importance of suctioning, then ABCAR scoring. Okay, so today we will continue from the newborn identification. So newborn identification: before a baby leaves the delivery area, identification bracelets with identical numbers are placed on the baby and the mother. Okay, and babies often have two or on the wrist and the ankle. Okay, so newborn identification means that every baby or every mother should have their own identification bracelet, means in that their name, age, sex and name of the mother or father will be written. Okay, so newborn identification baby before a baby leaves the delivery area. जब बेबी जो है डिलीवरी एरिया, ठीक है, डिलीवरी एरिया से हम क्या करते हैं, मदर और बेबी को शिफ्ट करते हैं इन दी पोस्टनेटल वार्ड. तो उससे पहले हमको क्या करना है, न्यूबॉर्न का प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करना है. एंड आइडेंटिफिकेशन ब्रेसलेट्स विथ आइडेंटिकल नंबर्स, ठीक है, उसमें ब्रेसलेट के साथ क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल नंबर्स आर प्लेस्ड ऑन द बेबी एंड द मदर. मतलब मदर और बेबी का जो है सेम आइडेंटिकल जो नंबर है वो लिखा होना चाहिए. एंड बेबीज ऑफन हैव टू ऑन दी रिस्ट एंड दी एंकल, और बेबी के जो है एंकल और रिस्ट में दोनों में जो है क्या होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिफिकेशन ब्रेसलेट होना चाहिए. The next is vitamin K. Vitamin K prevent the neonatal hemorrhage during the first few days of life before infant is able to produce the vitamin K administration. Okay, so vitamin K का इंजेक्शन जो है जैसे ही न्यूबॉर्न बेबी का बर्थ होता है तो उसके जस्ट आफ्टर विद इन फ्यू डेज हमको क्या करना है, विटामिन के का इंजेक्शन लगाना है बेबी को. जो विटामिन के है वो क्या प्रिवेंट करता है, न्यूनेटल हैमरेज, मतलब जितने भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं बेबी में उससे वो प्रिवेंट करता है. एंड बिफोर इन्फेंट इज एबल टू प्रोड्यूस विटामिन के एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, मतलब हम स्टार्टिंग जो बेबी का पीरियड है, न्यूबॉर्न पीरियड, उसमें क्या रहता है, बेबी प्रॉपरली जो है विटामिन के प्रोड्यूस नहीं कर पाता है. ठीक है, तो फ्यू डेज ऑफ लाइफ तक हमको क्या करना है, टिल द इन्फेंट पीरियड हमको क्या करना है, विटामिन के का इंजेक्शन देना है. तो जैसे ही बेबी का बर्थ होता है तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट डोज देते हैं. देन टर्म इन्फेंट्स में क्या करते हैं, 1 mg IM, and in the preterm infants 0.5 mg, that is also given intramuscularly. Okay, so according to the term and preterm or the gestational age, will provide the or will give the vitamin K injection to the newborn. If the baby is term infant, then we'll give 1 milligram, and if the baby is preterm infant, means born before the 37 week, then we'll give 0.5 mg IM. Then alternative route, by the oral dose 2 mg orally at birth. At birth we can also provide the baby 2 mg of the vitamin K injection. Okay, and repeat dose will give 2 mg at 3 to 5 days and at 4 to 6 week of age. And we can repeat the dose of vitamin K, and the dose is 2 mg. Okay, and at 3 to 5 days and at 4 to 6 week of age. So the next is initiation of breastfeeding. Babies can be breastfed as soon as the airway is cleared and they are breathing normally. Okay, babies में हमको breastfeeding कब start करना है, as soon as the airway is cleared. अगर बेबी का airway properly clear हो गया है, there will be no any discharge from the nose or mouth. Okay, and they are breathing the normally. If the babies are able to breathe properly or spontaneously, then we can initiate the breastfeeding immediately. Okay, then so here the immediate basic care has completed. Okay, so now we'll see the daily routine care of the neonates. The majority of complications of the normal newborn may occur during the first 24 hours or within the 7 days.
So close observation and daily essential routine care is important for health and the survival of the newborn baby. Okay, daily routine care means डेली जो हमको न्यूबॉर्न को केयर उसके नीड के अकॉर्डिंग जो हमको प्रोवाइड करना है। तो जो मेजॉरिटी ऑफ कॉम्प्लिकेशंस मीन्स जो बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है, नॉर्मल न्यूबॉर्न में वो कब स्टार्ट होते हैं, दैट विल अकर इन दी फर्स्ट 24 आवर्स, ठीक है, जैसे ही बेबी का बर्थ हुआ उसके 24 आवर्स या फिर विद इन 7 डेज जो है कोई भी कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकता है। तो इसलिए हमको प्रॉपरली डेली रूटीन केयर जो है न्यूबॉर्न बेबी को प्रोवाइड करना है। सो क्लोज ऑब्जर्वेशन एंड डेली एसेंशियल रूटीन केयर इज इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्थ एंड सर्वाइवल ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी। तो इसलिए हमको क्या करना है, इस ड्यूरेशन में विद इन 24 आवर्स और इस ड्यूरेशन में हमको क्या करना है कि प्रॉपरली बेबी को क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखना है एंड डेली एसेंशियल जो रूटीन केयर है, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट होता है फॉर द हेल्थ एंड सर्वाइवल ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी। तो इससे क्या होगा कि बेबी का हेल्थ भी प्रॉपरली मेंटेन रहेगा एंड सर्वाइवल ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी भी इम्प्रूव होगा। द नेक्स्ट इज द मेजर गोल्स, the major goal of routine care. So first one is the establish and maintain the homeostasis. Okay, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, by providing the routine care यहाँ पे establish और maintain करके रखना है homeostasis को। homeostasis that means the internal environment of the body. Okay, properly अगर हम routine care देंगे, अगर जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉपरली केयर प्रोवाइड करेंगे बेबी को। ओके, देन स्टेबिलिटी ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेटस। ओके, उसके बाद हमको क्या करना है, स्टेबल करना है जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेटस है बेबी का, उसको हमको मेंटेन करना है बाय द हेल्प ऑफ द रूटीन केयर। देन द डेली रूटीन केयर ऑफ द न्यूनेट्स। द डेली रूटीन केयर्स ऑफ द न्यूनेट्स आर एज फॉलोज। क्या क्या रूटीन केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज द warmth, second is breastfeeding, third is skin care and baby bath, then care of umbilical cord, then care of the eyes and clothing of the baby. So these all are comes under the daily routine care of the neonates. And then general care, observation, taking anthropometric measurements, then immunization and the follow up and advice. So we'll see about the daily routine care one by one. So first is warmth. Warmth is provided by keeping the baby dry and wrapping the baby with adequate clothing in 2 layers, ensuring head and extremities are well covered and baby should kept by the side of the mother. ठीक है, तो warmth हमको प्रोवाइड करने के लिए क्या करना है, बेबी को कम्प्लीटली जो है ड्राई करना है, उसको जो है रैप करना है, जो एडिक्वेट या फिर जो स्टेराइल जो है क्लॉथिंग है उसमें इन 2 layers. ओके, एंड ensuring head and extremities are well covered. और बेबी का जो हेड है और उसके जितने भी एक्सट्रीमिटीज है, अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज, उसको प्रॉपरली जो है कवर करना है। एंड बेबी शुड केप्ट बाय द साइड ऑफ द मदर। अब बेबी को ऐसा ड्रैप करके या रैप करके क्या करना है, हमको मदर के साइड में प्लेस करना है। द नेक्स्ट इज breastfeeding. Breastfeeding, the baby should be put to the mother's breast within half an hour of birth. As soon as possible, the mother has recovered from the exertion of labor. Okay, so breastfeeding हमको कब स्टार्ट करना चाहिए, इनिशिएट करना चाहिए, the baby should be put to the mother's breast within half an hour. ठीक है, अगर नॉर्मल डिलीवरी हुआ है तो within half an hour, and if it is LSCS condition, so in that condition we should have to initiate the breastfeeding within 1 to 2 hour. Okay, so बेबी को क्या करना है, हमको शुड बी पुट टू द मदर्स ब्रेस्ट विद इन हाफ एन आवर ऑफ बर्थ एज सुन एज पॉसिबल द मदर हैज रिकवर्ड फ्रॉम द एक्सर्शन ऑफ लेबर. सो ड्यूरिंग द डिलीवरी टाइम और ड्यूरिंग द लेबर टाइम मदर को जो है बहुत सारा डिस्कम्फर्ट फील होता है, ठीक है, और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं. तो जब मदर जो है वो रिकवर्ड हो जाती है फ्रॉम द एक्सर्शन और द डिस्कम्फर्ट ऑफ लेबर, तब हमको जो है ब्रेस्ट फीडिंग जो है इनिशिएट करवाना चाहिए. The next is skin care and baby bath. The skin should be cleaned of blood, mucus and meconium by gentle wiping before he or she is presented to the mother. ठीक है, तो जब कभी भी हम स्किन केयर करते हैं या बेबी बात करते हैं तो बेबी का जो स्किन है, ठीक है, एज यू ऑल नो दैट जस्ट आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी
उसके बॉडी में क्या रहता है, लेनुगो रहता है, ठीक है। तो उसको हमको क्या करना है, लेनुगो है, वर्निक्स कैसियोसा है, ठीक है, और बहुत सारे ब्लड टिंस्ड रहते हैं, म्यूकस रहते हैं और म्यूकोनियम रहते हैं, ठीक है। तो ये सारे को हमको प्रॉपरली और दी जेंटली वाइप करना है बिफोर ही और शी इज़ प्रेजेंटेड टू दी मदर। जब हम मदर के पास ले जाते हैं उससे पहले हमको बेबी को प्रॉपरली क्लीन करना है। एंड बेबी बाथ कैन बी गिवन एट हॉस्पिटल और होम बाय यूजिंग वार्म वाटर इन अ वार्म रूम जेंटली एंड क्विकली, ठीक है। तो बेबी बाथ हम दे सकते हैं, ठीक है, कैन बी गिवन एट हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल में दे सकते हैं, और दी होम बाय यूजिंग दी वार्म वाटर इन अ वार्म रूम जेंटली एंड क्विकली, ठीक है। जब कभी भी हम बेबी को बाथ प्रोवाइड करते हैं तो उसको हमेशा वार्म वाटर में प्रोवाइड करते हैं इन अ वार्म रूम, ठीक है। वहाँ का जो रूम का टेम्परेचर वो भी नॉर्मल होना चाहिए, वार्म होना चाहिए, एंड दी क्विकली हमको प्रोवाइड करना है। तो ये हो गया स्किन केयर एंड दी बेबी बाथ। Then next is first bath. Once a baby's temperature has stabilized, the first bath can be given. तो हमको फर्स्ट बाथ कब प्रोवाइड करना है, जब बेबी का टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया है, स्टेबलाइज्ड हो गया है, ठीक है, मतलब नॉर्मल कंडीशन में आ गया है, देन वी शुड हैव टू प्रोवाइड दी फर्स्ट बाथ। Then next is cord blood collection. Make sure cord blood is collected for analysis and sent to laboratory for checking of, that is RH blood type, hematocrit and possible cord blood gases. Okay, so cord blood collection जो है किया जाना चाहिए। Make sure cord blood is collected, हमको हमेशा देखना है कि during the clamping of the umbilical cord the healthcare professional or the nurse they should have to collect the cord blood collection, okay, for the analysis and send to the laboratory। हम इसमें एनालिसिस करते हैं और लेबोरेटरी सेंड करते हैं। क्यों करते हैं, फॉर चेकिंग ऑफ RH ब्लड टाइप, ठीक है, हमको देखना है कि बेबी का जो ब्लड ग्रुप है या उसका RH टाइप है वो किस टाइप का है, एंड देन हिमेटोक्रिट का लेवल क्या है, एंड द पॉसिबल कॉर्ड ब्लड गैस, कॉर्ड ब्लड गैस का जो लेवल है वो कितना है। तो ये सारी चीज़ के आइडेंटिफिकेशन के लिए हमको इमिडिएटली क्या करना है, अम्बिलिकल कॉर्ड से ब्लड का कलेक्शन करना है। द नेक्स्ट इज केयर ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड। कीप द कॉर्ड स्टम्प क्लीन एंड ड्राई। हमेशा जो अम्बिलिकल कॉर्ड का जो स्टम्प है उसको हमेशा क्लीन एंड ड्राई करके रखना है, क्योंकि अगर उसको बहुत ज़्यादा वेट किए, ठीक है, वेट है या फिर प्रॉपरली क्लीन नहीं कर रहे हैं स्टम्प को, कॉर्ड स्टम्प को, तो उससे क्या होता है, इन्फेक्शन लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन topical application of antiseptic is usually not necessary unless the baby is living in a highly contaminated area, ठीक है। इसमें जो है किसी टाइप का एंटीसेप्टिक या टॉपिकल जो एप्लीकेशंस होते हैं वो हमको अप्लाई करने की नीड नहीं होती है जब तक कि बेबी इज लिविंग इन अ हाईली कंटामिनेटेड एरिया। अगर बेबी जो है हाईली कंटामिनेटेड एरिया में है तो उस टाइम पे हम एंटीसेप्टिक जो है अप्लाई करेंगे इन द कॉर्ड स्टम्प। Otherwise, we don't need to apply any kind of topical applications or antiseptic solution or lotion on the cord stump of baby. Okay. The next is care of the eyes. Eyes should be cleaned at birth and once in every day using sterile cotton swabs soaked in a sterile water और नॉर्मल सलाइन, ठीक है। आइज़ को जो हमको क्या करना है, डेली क्लीन करना है फ्रॉम एट बर्थ एंड वंस इन एवरी डे, डेली हमको एक बार करना है। कैसे क्लीन करना है, विथ यूजिंग दी स्टेराइल कॉटन स्वैब सोक्ड इन स्टेराइल वाटर और दी नॉर्मल सलाइन। हमको क्या करना है, कॉटन स्वैब को जो है सोक करना है इन दी नॉर्मल सलाइन और दी स्टेराइल वाटर। देन वी शुड हैव टू क्लीन दी आई ऑफ द बेबी फ्रॉम दी इनर कैंथस टू आउटर कैंथस, ओके, एंड सेपरेट स्वैब फॉर दी ईच आई, ठीक है। ईच आई को क्लीन करने के लिए हमको जो है सेपरेट स्वैब यूज़ करना है, क्योंकि अगर सेम स्वैब से हम एक, सपोज हमने लेफ्ट आई को क्लीन किया विथ वन स्वैब, ओके, सो अगर उसमें किसी टाइप का इन्फेक्शन हो तो अगर उसी स्वैब को हम यूज़ कर रहे हैं फॉर द क्लीनिंग ऑफ द राइट आई, सो इससे क्या हो सकता है, लेफ्ट आई का जो इन्फेक्शन है वो ट्रांसमिट हो सकता है इन दी राइट आई, ओके। दैट्स वाई वी शुड हैव टू ऑलवेज यूज द सेपरेट स्वैब फॉर द ईच आई। The next is clothing of the baby. The baby should be dressed with loose, soft and cotton cloths. The frock should be open up on the front or back for the easy wearing, ठीक है। अब क्लॉथिंग जब करते हैं हम बेबी को तो हमेशा उसको जो है ड्रेस करते हैं विद द लूज, सॉफ्ट एंड कॉटन क्लॉथ्स, ठीक है, जिससे बेबी को किसी टाइप का जो कंफर्टेबल डिस्कम्फर्ट हो वो फील ना हो, ठीक है। इसलिए हमेशा लूज, सॉफ्ट एंड कॉटन क्लॉथ्स ही वेयर कराना चाहिए बेबी को। एंड द फ्रॉक शुड बी ओपन ऑन द फ्रंट और बैक फॉर इजी वेयरिंग,
तो जो बेबी गर्ल्स होती हैं जिनको फ्रॉक वियर किया जाता है, ठीक है, तो उनका जो ओपनिंग है, ठीक है, फ्रॉक का, वो या तो फ्रंट या फिर बैक में हो, जिससे क्या हो सकता है बेबी को हम ईजिली जो है वियर करवा सकते हैं ड्रेस। देन लार्ज बटन सिंथेटिक फ्रॉक एंड प्लास्टिक और द नायलॉन नैपकिन शुड बी अवॉइडेड। जो लार्ज बटन वाले क्लॉथ्स होते हैं या फिर जिसमें या सिंथेटिक फ्रॉक्स होते हैं, ठीक है, और जिसमें जो है प्लास्टिक या नायलॉन का नैपकिन होता है, तो ये सब हमको जो है अवॉइड करना है, क्योंकि इससे क्या होगा बेबी के स्किन में वो मतलब बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन कॉज करेगा, जिसके कारण इन्फ्लामेटरी रिएक्शन दिखेंगे, ठीक है। तो ये सारे कंडीशन से प्रिवेंट करने के लिए हमको जितने भी बेबीज हैं उनको प्रॉपरली ड्रेस करना है विद द लूज, सॉफ्ट एंड द कॉटन क्लॉथ्स। द नेक्स्ट इज जनरल केयर। इन द जनरल केयर हमको क्या करना है, rooming in. As we have seen previously that rooming in criteria, we should have to place the mother and baby in the same room for the 24 hours if the baby's condition is normal. Okay. Then second is gentle approach. Gently we should have to follow the rules regulation, means how we should have to care the newborn baby and how we should have to educate the mother regarding the newborn care. Okay. Then next is aseptic technique. When we are going to care the newborn infant, okay, we should have to always maintain the aseptic technique. Okay, क्योंकि जो newborn babies होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा chances होते हैं from birth till the 7 days infection लगने के, तो properly aseptic technique maintain करना है। Then sensory stimulation, ठीक है, sensory stimulation that means during the breastfeeding, ठीक है, baby to awake the baby during the breastfeeding we should have to do the sensory stimulation by tickling on the sole of the baby or behind the ear. ओके, सो जिससे क्या होगा, अगर हम प्रॉपरली सेंसरी स्टिमुलेशन मेंटेन करके रखेंगे तो ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग टाइम क्या होगा, वो प्रॉपरली जो है लैच ऑन जो हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है, कि बेबी का जो है ब्रेस्ट से प्रॉपरली अटैचमेंट रहेगा और वो प्रॉपरली सक कर पाएगा ब्रेस्ट मिल्क को, जिससे उसका प्रॉपरली जो है न्यूट्रिशन मेंटेन रहेगा। द नेक्स्ट इज टेंडर एंड द लविंग केयर। द न्यूबॉर्न बेबी शुड need to provide always tender and loving care by the mother or the other healthcare providers or the family members. Okay, so these all are the general care. The next is the observation. The baby should be kept in continuous observation twice daily for detection of any abnormalities. तो जो भी न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं तो उनको हमको प्रॉपरली क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन ट्वाइस डेली। ओके, दिन में हमको 2 बार जो है प्रॉपरली ऑब्जर्व करना चाहिए फॉर द डिटेक्शन ऑफ एनी एबनॉर्मलिटी। किसी टाइप का एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, जैसे अगर बेबी कुछ एबनॉर्मल मूवमेंट शो कर रहा है या एबनॉर्मल क्राइंग कर रहा है, तो ये सारी चीज़ हमको क्या करना है, प्रॉपरली ऑब्जर्व करना है। द नेक्स्ट इज एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट in the last session in the newborn assessment we have seen that also. So in the anthropometric measurement we are measuring 4 things. First is the measure the weight, then length, then head circumference and the chest circumference. So weight, the average daily weight gain for healthy term babies is about 30 gram per day in the first month of life. ठीक है, जो एवरेज वेट गेन होता है बेबी में, हेल्दी टर्म बेबीज में, वो कितना होता है, 30 ग्राम पर डे होता है, जो फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ होता है। एंड इट इज़ अबाउट 20 ग्राम पर डे इन अ सेकेंड मंथ। ठीक है, फर्स्ट मंथ में उसका वेट गेन कितना हो रहा था, 30 ग्राम पर डे, देन इट विल बी डिक्रीज। ठीक है, कितना हो जाएगा, 20 ग्राम पर डे इन अ सेकेंड मंथ, एंड देन इट ऑल्सो रिड्यूस इन दी 10 ग्राम पर डे आफ्टरवर्ड्स ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। ठीक है, आफ्टर द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ ये कितना हो जाता है, 10 ग्राम पर डे गेन करने लगता है। द नेक्स्ट इज लेंथ फ्रॉम टॉप ऑफ हेड टू द हील विथ द लेग फुल्ली एक्सटेंडेड। ओके, मीन्स जब हम लेंथ मेजर करते हैं तो क्राउन टू हील लेते हैं। ठीक है, तो टॉप ऑफ द हेड टू हील, और जो लेग रहता है वो फुल्ली एक्सटेंडेड होना चाहिए, क्योंकि बेबीज का जो नी है वो क्या रहता है, फ्लेक्स्ड रहता है, तो उसको हमको प्रेस करना है विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स फिंगर एंड देन उसको एक्सटेंड करना है। देन वी शुड हैव टू टेक द लेंथ ऑफ द baby. Then average range is between 18 to 22 inches, or that is 46 to 56 centimeter. The next is head circumference. Head circumference repeat after molding and caput succedaneum are resolved. ठीक है, तो head circumference कब लेते हैं हम, repeat after molding। ठीक है, जब मोल्डिंग हो जाता है, मतलब जो पैराइटल बोन है आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं, एंड दिस कैपुट सक्सीडिनम, अगर बेबीज में क्या है, कैपुट सक्सीडिनम का कंडीशन है। कैपुट सक्सीडिनम क्या होता है, ये एक टाइप का स्वेलिंग होता है
in the skull of the baby during the time of delivery. ओके, इन केस ऑफ प्रोलॉन्ग लेबर, और जब लेबर का ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाता है तो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है, बेबी के हेड में जो है प्रेशर पड़ता है, ठीक है, तो उसका जो स्कल है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं कैपुट सक्सीडिनम। तो ये जब कंडीशन रिजॉल्व हो जाता है देन ओनली वी शुड हैव टू टेक दी हेड सर्कमफेरेंस एंड द एवरेज रेंज इज 33 to 35 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका जो एवरेज रेंज होता है वो 33 to 35 सेंटीमीटर होता है एंड इन इंच दैट इज 13 to 14 इंच and the normally 2 centimeter larger than chest circumference. Place tape measure above eyebrow and stretch around fullest part of the occipital at posterior fontanelle. ओके, तो इसका जब हम मेजर करते हैं हेड सर्कमफेरेंस को, जो मेजरिंग टेप, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग टेप हमको लेना है, तो उसको हम कहाँ प्लेस करेंगे, एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द फ्रंटल लोब, ठीक है। फ्रंटल लोब से हम कम्प्लीटली राउंड करेंगे और एनसर्कल करेंगे, ठीक है, टू दी एक्सटर्नल टॉप पार्ट ऑफ द ईयर टिल दी सब ऑक्सीपुट रीजन, और कम्प्लीटली उसको राउंड करना है पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल एट पोस्टेरियर फॉन्टेनेले। ओके, सो ऐसे करके हम हेड सर्कमफेरेंस लेंगे, और जो नॉर्मल हेड सर्कमफेरेंस होता है वो होता है 33 to 35 सेंटीमीटर। The next is chest circumference at the nipple line. Okay, average range is 30 to 33 centimeter, 12 to 13 inch, and normally 2 centimeter smaller than head, and circumference stretch tape measure around scapula and over the nipple line. ठीक है, chest circumference जो है हमको क्या करना चाहिए, at the level of nipple हमको completely जो है मेजरिंग टेप को एनसर्कल करना है, एंड द एवरेज रेंज कितना होता है 30 to 33 सेंटीमीटर, जो कि जो हेड सर्कमफेरेंस से क्या होता है 2 सेंटीमीटर कम होता है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज इम्यूनाइजेशन। सो न्यूबॉर्न शुड बी इम्यूनाइज्ड विद BCG वैक्सीन, 0 dose of OPV that is oral polio vaccine, and hepatitis B vaccine can be administered at birth as first dose and other 2 doses in 1 month and 6 month of age. Okay, so immunization के लिए हमको क्या करना है, जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनका जो फर्स्ट इम्यूनाइज किया जाता है, तो क्या क्या इम्यूनाइजेशन दिया जाता है ये वैक्सीन। फर्स्ट इज BCG दैट इज Bacillus calmette-Guerin vaccine, and 0 dose of OPV oral polio vaccine, then hepatitis B, ये हमको एडमिनिस्टर करना है एट बर्थ, ओके, एज फर्स्ट डोज, एंड अदर 2 डोज हमको कब करना है, इन 1 month and the 6 month ऑफ एज, उसको रिपीट करना है सेकेंड डोज। The next is follow up and the advice. Each infant should be followed up at least 1 every month for first 3 months and subsequently 3 month interval till 1 year of age. ठीक है, तो फॉलो अप एंड एडवाइस हमको कैसे करना है कि एटलीस्ट वंस एवरी मंथ, जो हर मंथ है उसमें एक बार, ठीक है, फॉलोअप के लिए एडवाइस करना है फॉर दी फर्स्ट 3 मंथ, जो न्यूबॉर्न पीरियड के बाद फर्स्ट जो 3 मंथ होता है उसमें ईच मंथ एक बार, एंड सब्सिक्वेंटली 3 मंथ इंटरवल, उसके बाद 3 मंथ के इंटरवल में उनको जो है प्रॉपरली चेकअप या फिर फॉलो अप या एडवाइस लेना है टिल 1 year ऑफ एज। So these all are the routine care of the newborn. So in the daily routine care we have seen warmth, breastfeeding, skin care and baby bath, cord blood collection, care of the umbilical cord, care of the eyes, clothing of baby, then general care, observation, anthropometric measurements, then immunization and follow up and advice. Okay, so according to the condition of newborn baby, some nursing diagnoses are there. First is ineffective airway clearance related to nasal and the oral secretions from the delivery, then ineffective thermoregulations related to environment and immature ability for adaptation, then risk for injury related to immature defenses of the newborn, and risk for infection related to immature immune system. So these all are the nursing diagnoses. Students, you can use this all nursing diagnoses whenever you are making the nursing care plan or the nursing process related to newborn baby, because first one is related to the
difficulty in breathing, then second one is related to the temperature, okay, and third one is the related to if any type of injury is present, and last one is related to the infection. Okay, so these all nursing diagnoses are very important for you all. So here our topic essential care of newborn is completed. So thank you students.